A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, we discussed a lots of the important topic related to the different theoretical as well as the practical situation at the time of the issue of share. In the last video, we already discussed what is the meaning of forfeiture of the share and what journal entry should be passed at the time of the forfeiture of the share in both of the situation when share are issued at par and when share are issued at premium. And you know very well, when any shareholder issued at par, in this situation the journal entry will be share capital debit to share forfeiture to Paulson area when Paulson area account is open, and when Paulson area account is not open, so the entry of the forfeiture will be a share capital account debit to share capital, to share capital account debit, to share forfeiture, to share allotment, and to share cost. But when we are talking about the when share are issued at premium, and in this situation the share will be forfeited. So there are two situations in this category. The first will be a when premium amount is received, and number second when premium amount is not received. When premium amount is received, in this situation the journal entry will be same as the case 1, category 1, and when premium amount is not received, so the journal entry will be share capital debit, security premium reserve debit to share capital to Paulson area. As well as if we could not open the Paulson area account in the books of the company, so the journal entry will be share capital debit, security premium reserve debit, to share forfeiture, to share allotment, to share first call, to share final call. So the difference between both two important category at the time of the forfeiture of the share is the debiting the share security premium reserve account. If share are issued at par or if share are issued at premium and premium amount is received, in this situation premium account would not be debited. But when share are issued at premium and premium amount is not received, in this situation the premium security premium reserve account will be debited with the amount of the premium unpaid at the time of the forfeiture. So this is a simple and short summary of the journal entry at the time of the forfeiture of the share. So in today's video, firstly we discuss the first question related to the forfeiture of the share. But before that, let's discuss the main provisions related to the reissue of share. So you know very well, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, शेयर को इशू करती है, and after that due to the Paulson area, when any shareholder fails to pay the allotment of Paul's money, the company gave the 14 days notice to the shareholder to pay the balance amount, to pay the allotment of Paul's amount within a specified period with interest on Paul's area. But after repeated reminders, if any shareholder could not pay the balance amount, in this situation company have a right to forfeit such share. So after issue of share, company क्या करती है, उन शेयर को forfeit करती है. And after the forfeiture of the share, उस शेयर को कंपनी क्या करेगी, अपने पास रखेगी थोड़ी ना, उस शेयर को कंपनी क्या कर सकती है, मार्केट में फिर से रीइश्यू कर सकती है. So after the forfeiture of the share, company have an option to reissue of the forfeited share. So आप देख रहे हैं कि forfeiture of the share तक ही कहानी खत्म नहीं होती है शेयर की, बल्कि after the forfeiture of the share, company have an option to reissue of the forfeited share. So in today's video, firstly we discussed the main provision related to the reissue of forfeited share, and thereafter we discussed the lots of the doubt question from your side, that is in question number 18 and question number 19. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन फिर से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे, यानी वी पास द एंट्रीज फ्रॉम द एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉस्ट फर्स्ट वन.
So without any delay, let's get started. First topic of today's video, that's an reissue of forfeited share. So please, ready for it? Reissue of forfeited share. So first of all, let's discuss about it. What is the meaning of reissue of forfeited share? Basically, the director of a company, board of director of a company have the authority to reissue the forfeited share on such terms as they think fit. मतलब कि कंपनी शेयर को फॉरफीट करने के बाद अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग वो अपने शेयर को, फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू कर सकती है। जिस भी कंडीशन या जिस भी टर्म्स में वो रीइश्यू करे, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, जो कंपनी के लिए बेटर है, जो कंपनी के लिए फिट बैठे। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इशू ऑफ द शेयर, सो यू कैन सी दैट अभी हमने एक सीरीज बताई थी, कंपनी पहले शेयर इशू करती है, फिर शेयर होल्डर एरियर करते हैं, फिर कंपनी उसे एरियर की अमाउंट कॉल्ड अप करती है, विद इन अ डेज 14 डेज का नोटिस पीरियड देती है। उसके बाद भी अगर शेयर होल्डर पैसा नहीं देते तो कंपनी उनके शेयर को फॉरफीट कर लेती है, और आफ्टर द फॉरफीचर ऑफ द शेयर कंपनी अगर चाहे तो शेयर को फिर से मार्केट में रीइश्यू कर सकती है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रीइश्यू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, सो इट कैन बी एट 3 प्राइसेस। जैसे आपने इशू ऑफ शेयर पढ़ा था, तो जब कंपनी कोई शेयर इशू करती है मार्केट में फर्स्ट टाइम, तो सिर्फ 2 ही प्राइस पर इशू कर सकती है, पार, प्रीमियम। बट व्हेन शेयर आर रीइश्यूड, when the forfeited share will be issued by the company, so company have a 3 option. कंपनी पार पे भी इशू कर सकती है, प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है, और एक एडिशनल कंडीशन उसके साथ हो जाती है, डिस्काउंट के साथ भी शेयर रीइश्यू कर सकती है। यानी फॉरफीचर के बाद कंपनी शेयर को फिर से रीइश्यू कर सकती है एट 3 प्राइसेस, पार पे, प्रीमियम पे के डिस्काउंट। When any company reissue the forfeited share at par, so the normal journal entry will be a bank account debit to share capital. But when company issued the forfeited share at premium, so the journal entry will be bank account debit to share capital to security premium reserve. और अगर कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू करती है, तो यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की बात है कि इस सिचुएशन में द जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंड जो डिस्काउंट की वैल्यू है वो एडजस्ट होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट्स। आपको याद है जब हमने शेयर को फॉरफीट किया था, एट दिस टाइम वी ओपन अ शेयर फॉरफीचर अकाउंट एज अ प्रॉफिट। यानी कि सिंपल सी बात, मेरा कहने का मतलब है कि जब कोई कंपनी शेयर फॉरफीट करती है, सो आपको पता है कि उस शेयर पे जितना पैसा मिल चुका होता है, कंपनी उस मनी को भी क्या कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है। और जब उसी शेयर को कंपनी फिर से रीइश्यू करती है डिस्काउंट पे, तो उस प्रॉफिट को कंपनी क्या करती है, फिर से यूज कर सकती है। सो बेसिकली जब भी कोई कंपनी फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू करती है डिस्काउंट पे, तो फॉरफीचर के टाइम उस शेयर पे जितना प्रॉफिट मिला था कंपनी को, जैसे मैं एक बात बता रहा हूं, ये कंपनी ने शेयर इशू किया, 10 रुपए का शेयर इशू किया, नॉट रीइश्यू, इशू किया, और 10 रुपए में 5 रुपए मिला, 5 रुपए नहीं मिला। सो कंपनी जब इस शेयर को फॉरफीट करेगी, तो जो 5 रुपए मिल चुका है शेयर पे, कंपनी उसको भी फॉरफीट कर लेगी। ऐसा नहीं कि फॉरफीचर के बाद कंपनी उस पैसे को वापस लौटा देगी, नहीं, कंपनी उस शेयर को भी क्या कर लेगी, अपने पास फॉरफीट कर लेगी। इट इज क्लियर?
So at this time the journal entry will be share capital, 2 share forfeiture, 2 calls period, यानी forfeiture के टाइम जो भी उस शेयर पे पैसा मिला था कंपनी ने उसको भी फॉरफीट कर लिया, तो उसको हम लोग सिंपली कहते हैं प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर, यानी शेयर को फॉरफीट करने पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ। क्यों प्रॉफिट हुआ? क्योंकि कंपनी को शेयर भी वापस मिल गया और जो शेयर पे 5 रुपए 4 रुपए जो भी मिला था वो भी मिल गया। फिर जब वो कंपनी फिर उस शेयर को मार्केट में इशू करेगी, पार पे करेगी प्रीमियम पे करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डिस्काउंट पे कर रही है तो फॉरफीचर के टाइम जो भी प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट को यहां से एडजस्ट करें। इज दैट क्लियर? एंड आफ्टर द रीइश्यू ऑफ द शेयर, ये भी समझना जरूरी, आफ्टर द रीइश्यू ऑफ द शेयर कंपनी जो भी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस बचा रहता है, लिसन केयरफुली, आफ्टर द फॉरफीचर ऑफ द शेयर, आफ्टर द रीइश्यू ऑफ द शेयर, reissue of shares, credit balance left in share forfeiture account must be transferred to capital reserve account। ये पॉइंट अपने दिमाग में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा कि कंपनी जब शेयर को रीइश्यू करती है, चाहे वो पार पे करे, प्रीमियम पे करे या डिस्काउंट पे करे, उसके बाद कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट बचा रहता है, जो भी प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को कंपनी क्या करती है? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। सो द जर्नल एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर forfeiture account debit to capital reserve। इस पॉइंट को हम लोग और अच्छे से डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, पहले आप इस टॉपिक को अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए। ओके, सो आपने ये देखा कि कंपनी शेयर को फॉरफीट करने के बाद क्या करती है, चाहे तो उसको रीइश्यू कर सकती है। रीइश्यू के पास उसके पास 3 ऑप्शन है, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। पार और प्रीमियम पे है तो कोई भी लॉस नहीं होता कंपनी को, यानी जो फॉरफीचर के टाइम प्रॉफिट है वो एज इट इज पड़ा रहता है। और अगर डिस्काउंट पे रीइश्यू करती है तो जो भी प्रॉफिट कंपनी के पास पड़ा हुआ है पहले से फॉरफीचर के टाइम पे, उसे डिस्काउंट के टाइम पे जितना लॉस होता है उससे एडजस्ट किया जाता है। एंड आफ्टर द रीइश्यू ऑफ द शेयर कंपनी फॉरफीचर अकाउंट में जितना पैसा बचा रहता है रिलेटेड टू द रीइश्यू ऑफ द शेयर उसे ट्रांसफर कर देती है कैपिटल रिजर्व में। सो दिस इज ऑल अबाउट द रीइश्यू ऑफ द फॉरफीटेड शेयर। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक लेट्स वी मूव टू द doubt question from your side, that is question number 18 and question number 19. So please note down. So the first question of today's session is question number 18 of the chapter number 7. A limited company was registered with a capital of 5 lakh of rupees 5 lakh registered capital of rupees 5 lakh in share of 10 each, and issued 20,000 such share at a premium of 2 per share, payable as rupees 3 per share on application, 4 per share on allotment including premium, and 2 per share on first call made 3 months later. All the money payable on application and allotment were duly received. But when the first call was made, one shareholder paid the entire balance on his holding 300 shares, and another shareholder holding 1000 share failed to pay the first call money. So इस क्वेश्चन में you can see that the company issued 20,000 share. In the question number 18, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए? 20,000 शेयर, और एक शेयर जो है वो है आपका 10 रुपए का और 2 रुपए प्रीमियम पे। सो टोटल इशू प्राइस विल बी 12।
आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे कि पैसा कैसे मांगेगा, यानी कंपनी को 12 रुपए टोटल कॉल करना है, तो कंपनी एप्लीकेशन पे कितना मांग रही है? एप्लीकेशन पे कंपनी का है 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे कंपनी कॉल्ड अप कर रही है 4 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना है? 2। अब आप देखो 4 रुपए टोटल अलॉटमेंट मनी है, तो 2 रुपए प्रीमियम का है, तो 2 रुपए किस चीज का होगा? शेयर का होगा 2 रुपए। फर्स्ट कॉल आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स कॉल्ड अप किया गया है। फर्स्ट कॉल दैट इज एन 2 रुपीज। फाइनल कॉल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप परेशान मत होइएगा कि फाइनल कॉल अगर लिखा होता फाइनल कॉल बैलेंस, तो उसका मतलब फाइनल कॉल की भी एंट्री पास होती है। बट इस क्वेश्चन में फाइनल कॉल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि फाइनल कॉल मांगा गया है कि नहीं मांगा गया। सो वी एज्यूम दैट कि फाइनल कॉल हमें मांगने की जरूरत नहीं है, यानी हमें फाइनल कॉल नहीं मांगेंगे। देखिए नीचे हिंट में भी लिखा हुआ है सेकेंड कॉल हैज नॉट बीन मेड इन द क्वेश्चन एज सच द एंटायर आर टू बी पास्ड अप टू फर्स्ट कॉल ओनली। सॉरी, एंट्रीज आर टू बी पास्ड अप टू फर्स्ट कॉल ओनली, मतलब सिर्फ जो एंट्रीज पास होंगी वो सिर्फ कब तक पास होंगी? फर्स्ट कॉल तक पास होंगी। अब प्रॉब्लम क्या हुई है? कह रहा है ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड, यानी सारा पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट का मिल गया, यानी एप्लीकेशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अलॉटमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, ये कि जब हमने फर्स्ट कॉल मांगा 2 रुपए से, तो वहां क्या हुआ? वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर, यानी एक शेयर होल्डर था, उसने सारा का सारा पैसा फर्स्ट कॉल पे दे दिया। एंटायर बैलेंस, बैलेंस मतलब टोटल 12 रुपीज देना था, और अप टू फर्स्ट कॉल कंपनी ने कितना मांग लिया? 437 टू 9 रुपीज कंपनी ने कॉल्ड अप कर लिया। तो अगर कंपनी फाइनल कॉल मांगती या लास्ट कॉल मांगती, तो कंपनी और कितना मांगती? 3 रुपए मांगती। 4 3 7 8 9, टोटल मांगना है कंपनी को 12, तो अभी कितना और मांगना चाहिए था? 3 रुपए। तो ये जो अच्छा व्यक्ति था, एक कॉस्ट शेयर होल्डर, जिसके पास कंपनी के पास कितना शेयर था? 300 शेयर था। इस बंदे के पास कितना शेयर था? 300 शेयर था। उसने पूरा का पूरा बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट मतलब 3 रुपए, क्या कर दिया? एडवांस में दे दिया। मतलब फाइनल कॉल का पैसा उसने उठाकर फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया है। तो कॉस्ट एंड एडवांस कितना बनेगा? 300 इंटू 3, 900। सेंटेंस को, इंग्लिश वाले सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए। लिखा हुआ है वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर। तो ये अच्छा इंसान है। अच्छा मतलब खुश वाला। और दूसरा शेयर होल्डर जो गंदा होगा, बेकार होगा, वो क्यों? अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, यानी दूसरा शेयर होल्डर जिसके पास कितना शेयर है? 1000 शेयर है, उसने फेल हो गया। फेल मतलब एरियर। जब कोई पैसा पहले दे देता है, जैसे फाइनल कॉल का पैसा अगर किसी ने फर्स्ट कॉल पे दे दिया, तो वो एडवांस कहलाता है। वहीं अपोजिट सेंस में अगर किसी से हमने फर्स्ट कॉल मांगा और उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो वो क्या कहलाएगा? एरियर। तो फर्स्ट कॉल पे एडवांस भी है, फर्स्ट कॉल पे एरियर भी है। एरियर कितना बनेगा? 1000 पे 2 रुपीज, यानी 2000। यानी जब आप जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो सबसे पहले जर्नल एंट्री किसकी पास करेंगे? एप्लीकेशन मिलने की। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना शेयर था? 20,000 शेयर। एक शेयर कितने का है? 3 रुपीज का है, 60,000। दूसरी जर्नल एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 60,000। कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, ना अंडर सब्सक्रिप्शन है इस क्वेश्चन में, सिंपल सा है। फिर एंट्री नंबर 3 हम लोग कहां करें? यहां करते हैं, थोड़ी स्पेस की जरूरत पड़ेगी। एंट्री नंबर 3 अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहां से आ गया? क्योंकि शेयर किस पे इशू है? प्रीमियम पे इशू है शेयर।
और जब कोई शेयर प्रीमियम पे इशू होता है तो आपको पता है कि उस सिचुएशन में हम प्रीमियम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कितने शेयर हैं, 20,000, जिसमें ₹2 शेयर का है, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 40,000, एंड 20,000 इंटू 2 प्रीमियम का कितना हो जाएगा, 40,000। तो टोटल अलॉटमेंट मनी कितनी हो गई, 80,000। से होगी 80,000। Why? Because 40,000 is related to the share and 40,000 related to the premium. और क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि अलॉटमेंट तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। सो ये यहां तक की एंट्रीज क्या होंगी, आपकी कंप्लीट हो गई, यानी अपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट तक की एंट्री कर ली। जब आपने फर्स्ट कॉल ड्यू किया, यानी अब फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल डिमांड करेंगे। सो उसकी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो फर्स्ट कॉल जब आपने ड्यू किया तो कितने शेयर पे ड्यू किया, 20,000 शेयर पे ₹2, यानी कि 40,000। अब जब फर्स्ट कॉल आप रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे दो घटनाएं घट रही हैं। एक अच्छा इंसान है जिसने एडवांस दे दिया, और एक बुरा इंसान है जिसने एरियर कर दिया। तो मैंने आपको वीडियोस में बताया था कि जब भी कोई क्वेश्चन में एरियर और एडवांस दोनों हो जाता है तो वहां पर एरियर को डेबिट करते हैं और एडवांस को क्रेडिट करते हैं। सो कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा और एडवांस क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्योंकि एडवांस मतलब एक तरह से इनकम हमें एडवांस में मिल गई। सो इनकम इन एडवांस इज एक तरह से प्रॉफिट है, या कह सकते हो लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट होती है। और एरियर मतलब किसी ने पैसा नहीं दिया तो इट इज लॉस फॉर मी। सो एरियर कितना है 2000, एडवांस कितना है 900, फर्स्ट कॉल मांगा कितना था 40,000। अब आप कैलकुलेशन कर लो कि फर्स्ट कॉल पे मिलना था 40,000, बट 2000 एरियर हो गया और 900 एडवांस हो गया। सो आप ऐड और लेस कर लो तो वैल्यू आपकी आएगी 38,900, यानी अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल दैट इज एन 38,900। व्हाई? बिकॉज 40,000 आपने फर्स्ट कॉल डिमांड किया है एंट्री नंबर 5 में, और 2000 एरियर हो गया, यानी कितना मिलना चाहिए था 38,000, लेकिन 900 आपको एडवांस में मिल गया, यानी फाइनल कॉल का पैसा आपको पहले ही मिल गया। सो उसकी एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, फर्स्ट कॉल, 2 calls in advance. Okay, so this is a question number 18. अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे, और साथ साथ आप लोग के जो भी डाउट्स होंगे दोनों क्वेश्चंस पे उस पे डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 19 says that and it is a very important question for us, क्वेश्चन नंबर 19। और ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19, यस। लेकिन एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूं शॉर्ट में। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19, यू कैन सी दैट कंपनी ने फाइनल कॉल ड्यू किया ऑन 50,000 इक्विटी शेयर। कंपनी ने कितना शेयर ड्यू किया, 50,000 शेयर्स पे आपसे फाइनल कॉल डिमांड किया गया है, 50,000 शेयर पे। गॉट इट? अब कंपनी क्या कर रही है, आपसे फाइनल कॉल डिमांड कर रही है 50,000, तो उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर पे, 50,000 शेयर्स पे कितना रुपए है, ₹2, दैट इज एन 1 lakh। ये है फाइनल, सॉरी फर्स्ट कॉल है, शेयर फर्स्ट कॉल, यानी इसमें डायरेक्ट आपसे फर्स्ट कॉल के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है कि कंपनी ने डायरेक्टली आपसे फर्स्ट कॉल डिमांड किया 50,000 शेयर पे ₹2 से ऑन 28 फरवरी 2016। ये है क्वेश्चन नंबर 19। अब क्या हुआ इस क्वेश्चन में, कह रहा है
कोमल अ होल्डर ऑफ 1000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी, ये एरियर हो गया. एंड कोविल अ होल्डर ऑफ 750 शेयर पेड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर along with फर्स्ट कॉल. यानी ये अच्छे हैं. कोमल जो है वो खराब है क्योंकि उसने एरियर किया है, और वेयर एज कोविल जो है वो अच्छा पर्सन है क्योंकि उसने एडवांस कर दिया. तो अभी मैंने जस्ट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था कि जब भी कोई एरियर हो सो कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर दो और कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट कर दो. सो अब आप देखिए ध्यान से, कितना शेयर आपने मांगा था फर्स्ट, कितना रुपए मांगा था फर्स्ट कॉल पे? 1 लाख. सो फर्स्ट कॉल के सामने आपने 1 लाख लिख लिया. ये देखिए एरियर कितना हुआ है. कोमल जिसके पास 1000 शेयर था उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया. फर्स्ट कॉल कितने से था? 2 रुपीज से. सो 2000 एरियर हो गया. एडवांस किसने किया है? कोविल ने. कितना शेयर है? 750 रुपीज. उसने एडवांस कितना दिया है? 4 रुपीज पर शेयर. और ये 4 रुपीज किसका था? फर्स्ट फाइनल कॉल का. तो ये हो गया आपका 3000. सो अब आप देखिए 1 लाख में 2000 एरियर हो गया, यानी आपको मिलना चाहिए था 98,000, बट 3000 आपको एडवांस मिला. सो 3000 ऐड कर दो 98,000 में, सो हो जाएगा बैंक 1 लाख बैक 1000. सो अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल इन द क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज एन 1 लाख 1000. सो आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 देख के आपको इतना समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर. कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है व्हेन एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अलॉटमेंट और कॉल्स अमाउंट. क्योंकि जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो सबसे पहले कंपनी क्या है? शेयर इशू किया, तो शेयर इशू कर को हम रिकॉर्ड नहीं करते मॉनेटरी में, क्योंकि इसको हम मॉनेटरी में मेजर नहीं कर सकते कि कंपनी के कितने शेयर सब्सक्राइब हैं. सब्सक्राइब किस बेसिस पे डिस्कस होता है? एप्लीकेशन मनी रिसीव. सो एप्लीकेशन पे जिसने पैसा नहीं दिया, कंपनी उनको शेयर होल्डर बनाने के बारे में सोचती ही नहीं है. बात समझिएगा. कंपनी ने आज 50,000 शेयर 10 रुपीज का इशू किया, और उस 10 रुपीज को कंपनी ने 4 रुपीज मांगा. 3 रुपीज एप्लीकेशन, 3 रुपीज अलॉटमेंट, 4 रुपीज कॉल्स, टोटल 10 रुपीज उसे मांगना है शेयर होल्डर से. सो जो पहला 3 रुपए कोई देगा उसी को कंपनी क्या करेगी? शेयर होल्डर बनाने के बारे में सोचेगी. जिसने एप्लीकेशन ही नहीं दिया तो कंपनी उसको शेयर थोड़ी ना अलॉट करेगी. इसीलिए एप्लीकेशन में बैंक की एंट्री पहले होती है, और इसीलिए एप्लीकेशन पे एरियर भी नहीं होता, क्योंकि जिसने पैसा एप्लीकेशन मनी दिया कंपनी उसी को शेयर अलॉट करती है. इसलिए दो बातें याद रखिएगा हमेशा. इसीलिए एप्लीकेशन की एंट्री पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन होती है, और फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट. क्योंकि कंपनी पहले शेयर इशू करती है, और जितने लोग एप्लीकेशन मनी देते हैं कंपनी उन्हीं में से शेयर होल्डर बनाती है. अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो सबको शेयर्स दे रही है. इक्वल सब्सक्रिप्शन है, मतलब जितना कंपनी ने शेयर इशू किया उतना ही सब्सक्राइब हुआ है, तो उस सिचुएशन में कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होती. लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो उसको मैंने समझाया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन केस में कंपनी डिफरेंट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करके शेयर अलॉट करती है. सो एप्लीकेशन में पहले एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन होती है, और दूसरी बात इसीलिए एप्लीकेशन पे एरियर नहीं होता. इसीलिए कॉल्स इन एरियर की डेफिनेशन ये है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप सीधे बताएगा, कॉल्स इन एरियर मींस व्हेन एनी शेयर होल्डर फेल्स टू अलॉटमेंट और कॉल्स अमाउंट. कॉल्स में कोई भी कॉल्स हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे सेकंड कॉल हो, चाहे थर्ड कॉल हो, चाहे फोर्थ कॉल हो, चाहे फाइनल मतलब लास्ट कॉल. अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि एक ही कॉल्स हो, 2 कॉल्स हो, 3 कॉल्स हो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन से. सो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर, व्हेन एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल्स अमाउंट, चाहे वो मतलब एप्लीकेशन पे एरियर नहीं हो, इसीलिए एरियर को हम डेबिट करते हैं. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एडवांस? व्हेन एनी शेयर होल्डर पेड द बैलेंस अमाउंट with the
इन एडवांस या बैलेंस अमाउंट इन एडवांस आप कह लीजिए। जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, कंपनी ने एप्लीकेशन मांगा, अलॉटमेंट मांगा और कॉल्स मांगा। तो कुछ शेयर होल्डर ऐसे होंगे जो अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन पे दे देंगे, कुछ शेयर होल्डर ऐसे होंगे जो कॉल्स का पैसा अलॉटमेंट पे दे देंगे। सिचुएशन देखिए कितनी बन सकती है। कुछ ऐसे होंगे जो कॉल्स का पैसा एप्लीकेशन पे दे देंगे, कुछ ऐसे शेयर होल्डर होंगे जो अलॉटमेंट और कॉल्स दोनों का पैसा किस पे दे देंगे, एप्लीकेशन पे दे देंगे। सो डिफरेंट सिचुएशंस आ गया कि एडवांस का मतलब है जब वो पैसा देना था उससे पहले दे देना, उसे हम लोग बोलेंगे एडवांस। एडवांस का मतलब आपको मैंने 11th में पढ़ा हुआ, एडवांस मतलब कोई पैसा पहला पैसा ड्यू नहीं है लेकिन आपने पहले पे कर दिया। तो कंपनी के सेंस में कंपनी ने शेयर इशू किया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स मांगा और किसी शेयर होल्डर ने कॉल्स का पैसा एप्लीकेशन या अलॉटमेंट पे दे दिया, तो कंपनी को वो पैसा एडवांस में ना मिल गया। तो ये कंपनी के लिए क्या हो गई, लायबिलिटी। और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ calls in advance and calls in area.